ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲੀਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਨ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ CM ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ CEO ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ DGP ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਚਲੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਟੂਲ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ TMC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿ ਇਹ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੁਝ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਨੇ ਅਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, 50 ਲੋਕੀ ਜਾਂ 20 ਲੋਕੀ ਜਾਂ 5 ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁਕਵਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਈਕੋਫੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ CM ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਦੇਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਡਰੋਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਆਫਕੋਰਸ BSF ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੈਟਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਲੱਗੇ ਜੇ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਫॉर ਅਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵਲੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਪੈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਟ ਦ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਰੇਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਰ ਏਕੜ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੈਟਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਕੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। electricity crisis. In order to manage electricity crisis, government has invoked Section 11 in Electricity Act and asking imported coal projects to generate more electricity. इस वक्त जो क्राइसिस हैं इलेक्ट्रिसिटी के विद द काइंड ऑफ टेम्परेचर्स एंड कंजम्पशन दैट वी आर सीइंग, इट वाज नीड ऑफ द आवर। और राइट नाउ कोयला बहुत ही एक्सपेंसिव हो रखा है, रेट बढ़े हुए हैं यूक्रेन रशिया क्राइसिस का इस डायरेक्शन में भी, क्योंकि यूक्रेन में भी बहुत कोल माइंस हैं और उसके एक्सपोर्ट इस वक्त बंद हो रखे हुए हैं। तो अगर सारे इंपोर्ट बेस्ड जो भी जो पावर प्लांट्स हैं, कुछ पावर प्लांट्स होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि वो कोयल कहाँ से सोर्स करेंगे, तो वो इंपोर्ट बेस्ड है। और मेरे को लगता है कि कुछ हमारे ऐसे भी ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप फुल कैपेसिटी पे काम करो, लेटर ऑन प्राइस एडजस्ट कर दिए जाएंगे कि अगर आपने आज कोयला कॉस्टली होने के कारण ज़्यादा प्रोडक्शन की है तो दे विल बी पेड बैक, और वो एक पैनल बन के उनके दे विल बी पेड फॉर जो भी उनका एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है। पर एक मेरे दिमाग में एक चीज़ ये भी थी कि अगर सरकार एक और इनिशिएटिव ले, ऐसे काफ़ी हमारे यहाँ बिजली के प्लांट की कंपनीज थी, उनके प्लांट्स इसलिए बंद हुए हैं बिकॉज उनकी बैंकरप्सी हो रखी है, उनके पास फंड्स ही नहीं है उसको चलाने के। तो गवर्नमेंट के पास आई एम श्योर स्पेशल पावर्स हैं, गवर्नमेंट खुद उनको रन करना शुरू करे या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर करे जल्दी। कोयले के प्लांट, माइंस, ऐसे कितनी चीज़ें लीगल केसेस में फंसी पड़ी हैं क्योंकि पहले किसी करप्शन के कारण के केस चल रहे हैं, या वो उसको अच्छी तरीके से चला नहीं पाए या कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिलीवर कर पाए। ऐसा बहुत सारा लेटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है हमारे देश में। ऐसे बहुत सारे बिजली के प्लांट, हाइड्रो प्लांट्स, कोल बेस्ड प्लांट्स, मीन्स थर्मल प्लांट्स, ऐसे बड़े प्लांट्स पड़े हुए हैं जिनको अगर रिवाइव किया जाए तो वो हमारी जो कैपेसिटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को उसके लिए भी फास्ट ट्रैक एक सिस्टम, एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए कि भाई ये एक नेशनली इम्पॉर्टेंट असेट्स हैं, इनको केसेस के अंदर सालों साल बंद ना रखा जाए। चाहे वो माइंस हैं, कोल से रिलेटेड हैं, चाहे वो ऑयल वेल्स हैं, चाहे वो बिजली के प्लांट हैं, ऐसे जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे असेट्स हैं जो लीगल केसेस के कारण ऐसे बंद पड़े हुए हैं, उनको बंद ना रहने दिया जाए। ये भी एक अच्छा एक आइडिया हो सकता है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जिनकी भी ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं, इसको फास्ट पेस उनको रिवाइव करके चाहे एक बॉडी को दे दें, चाहे किसी को बिड कर दें, और केसेस पैरेलली जो भी उस पर डिसीजन लेना लेते रहें। सर, करनाल हरियाणा में 4 टेररिस्ट अरेस्ट किए गए और सिक्योरिटी पर्सोनल का कहना है कि वेपन कंसाइनमेंट जो है वो ड्रोन्स के थ्रू डिलीवर किए गए। लोग ये आज की डेट में ड्रोन्स अगर हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे तो इसको हमारे दुश्मन देश भी, दुश्मन एलिमेंट्स भी यूज़ करेंगे। आज काफ़ी प्रूवन ही हो चुका है, जो जम्मू में भी अटैक हुए, कश्मीर में भी अटैक हुए, ड्रोन्स का इस्तेमाल अब एक कॉमन सिस्टम बन गया क्योंकि एक लो कॉस्ट पे आप एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक इम्पैक्ट दूसरे देश में डाल सकते हो। तो गवर्नमेंट को बड़ी स्ट्रॉन्ग ड्रोन पॉलिसी स्पेशली फ्रॉम दी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, चाहे इंडिया के स्टार्टअप्स को लगाया जाए जो ऐसे मूवमेंट ऑफ ड्रोन्स को डिटेक्ट कर पाएँ, ऐसे रडार सिस्टम जो ड्रोन्स की मूवमेंट बॉर्डर एरियाज़ में डिटेक्ट कर पाएँ और काउंटर मेजर ले पाएँ या उनको हैक कर पाएँ। देखो, ड्रोन एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चल रहा होगा, हमारे को वो सिस्टम्स हैं भी हैं और उनको और डेवलप करने की ज़रूरत है, हम उनको हैक करके अपने कंट्रोल में ले पाएँ। अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लाने की ज़रूरत है। और ये हम जैसे अभी बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पंजाब, ये ऐसी सीरियस इशू है जिस पे हमें लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करने की ज़रूरत है। सेंटर और स्टेट, मैं हमेशा कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल पंजाब गवर्नमेंट का ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन दिल्ली गवर्नमेंट।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल बना के हम अपने बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, बीएसएफ और पंजाब पुलिस मिलके कितना काम और कैसे कर सकती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। रदर देन हम प्रेजेंट करें कि बीएसएफ की अगर जो रिस्ट्रिक्शन एरिया बढ़ता है तो वो हमारे पंजाब के हित में नहीं है, वो बिल्कुल ही गलत बात है, बेबुनियाद बात है। हमें इस चीज़ को बेटर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। आज तो ये पकड़े गए और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हर बार सक्सेसफुल होना पड़ेगा इनको फेल करने के लिए, और इनको सिर्फ एक बार सक्सेसफुल होना है। तो अगर ये बाई चांस ना पकड़े जाते और कहीं पे खालिस्तानी टेररिस्ट कहीं पे अटैक कर देते तो हम तो ऑलरेडी हमारा जो सोशल फाइबर है वो अंडर प्रेशर है, अंडर स्ट्रेस है। तो यहाँ पे तो भाईचारे बढ़ाने ऐसे इंसिडेंट्स इसमें फ्रैक्चर डालने के लिए काफ़ी हैं। तो ये इस वक्त बहुत ही अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो मेरी पंजाब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको ये है कि और एक्टिव रहें। अभी कॉन्ग्रेचुलेट हरियाणा पुलिस की, उन्होंने टेररिस्ट को पकड़ा, पर ये फिरोजपुर से हथियार लेके ना निकल पाएँ, ये इंश्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है। बॉर्डर को हमने नॉन पोरस बनाना है। हमारे बॉर्डर में बहुत लीकेजेस हैं, हथियार, ड्रग्स, लोग, टेररिस्ट आप आ जा पा रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। सर, आखिरी सवाल इंटरनेशनल मुद्दे पे आते हैं। 6 इंडियन नेशनल्स हैव बीन चार्ज्ड फॉर इम्प्रॉपर एंट्री इन वायलेशन ऑफ यूएस लॉ। देखो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत से लोग किसी भी तरीके से यूएस में या कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, और उसके लिए वो कुछ भी इलीगल, कुछ भी पेन उठाने को तैयार हैं, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। और अपने यंगस्टर्स की भी, एक थोड़े महीने पहले एक इंडिया बेस्ड फैमिली, चारों उस फैमिली के मेंबर्स उस फ्रीजिंग, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत लोग हैं, डेथ फ्रीज कर गए और मारे गए, बच्चे मारे गए, पति पत्नी मारे गए, विच इज़ सो सैड एंड अनफॉर्चुनेट। इसमें हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्यों आप अपने देश को ना तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज़ दे पा रहे हो, कि लोगों को लगता है, अच्छी खासी लाइफ देख के भी लोगों को लगता है, जब ऐसी खबरें आएंगी कि पुलिस आपस में लड़ी जा रही है, कोई सेफ नहीं है, टेररिस्ट आ रहे हैं, तो कौन वहाँ पे रहना चाहेगा। तो हमें तो पहले अपना नरेटिव और अपनी इमेज और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। और जैसे यूएस ने अपने आप को कर रखा है कि इट इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन, क्या वहाँ पे क्राइम नहीं है, क्या वहाँ पे रेसिज्म नहीं है, क्या वहाँ पे गरीबी नहीं है, क्या वहाँ पे लोग सड़कों पे नहीं रहते, वहाँ पे भी है। पर उन्होंने अपने आप को पोजीशन ऐसे कर रखा है कि दुनिया का हर आदमी वहाँ पे रहना चाहता है। इट इज़ सीन एज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आज इंडिया का भी वो नरेटिव बनाने की ज़रूरत है, इट इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और हम हैं, हमारे पास ग्रोथ के बहुत चीज़ें हैं, और उसके ऊपर हमारे पास एक अपनी इंडिक वैल्यूज़ हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे को धास देता है कि अगर एक मोहल्ले में शादी होती है तो सब कंट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है, तो हमारे यहाँ पे लोग एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। और पर इसके लिए हमारी मीडिया को, रिस्पॉन्सिबल मीडिया को, न्यू एज मीडिया को, और जैसे जो पंजाब टुडे हमेशा कोशिश करता है, और हमारे पॉलिटिशियंस को एक इन्वायरमेंट भी देना है, सिक्योरिटी देनी है, करप्शन कम करनी है, लोगों को लगे कि यहाँ पे मेरे बच्चे का फ्यूचर है, यहाँ पे मेरा फ्यूचर है, मेरे को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो हम ड्रीम करते हैं कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ आए, वी शुड बी ओपन, इंडिया हमेशा सबके लिए ओपन रहा है, वी शुड बी सीन एज दी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब। और उसके लिए सबको मिलके अपने देश की इमेज सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस लिख के नहीं होगी, उसके लिए रियल में भी वैसे काम करने पड़ेंगे, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। हमारा बिहेवियर, अगर हम लेट्स से कि सड़क पे चल रहे हैं और हम कोई भी बिहेवियर, हमारा बिहेवियर दिखाएगा कि हिंदुस्तान कैसा देश है, हम कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, अगर कोई लड़की कितना सिक्योर फील करती है, ये सारी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एट द सेम टाइम लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म एक मेजर, मेरा ये मानना है, आज की जो भी डिस्कशन हुई है, कि पुलिस रिफॉर्म एक मेजर इम्पेटस दे सकते हैं ओवरऑल हमारे सोशल फैब्रिक को सिक्योर और फेयर करने के लिए। आई सेकंड दैट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज़। ऐसे ही मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।